Hi friends, once again I am here with you giving some knowledge area of biology, discussing your chapter. We will start from the portion where we had left it. But before going in detail, we will have a quick sum up. We were discussing chapter 6, life processes. We discussed about living, non-living things, molecular movements. We discussed life processes. What are life processes? In that life processes, we discuss maintenance functions of living organisms, and that we talked that means those maintenance functions should in even go on even living things are not doing anything in particular. We discussed the breakdown of molecules for getting energy. We discussed how outside sources of energy are very important for the complex body system. These are the things we discussed. In case of single-celled organism, in no specific organs are taking part for maintenance of life process. Because we were discussing that maintenance of life process is very much required with energy, and that energy we are getting from outside. In single-celled also and complex body system also, the living things are taking energy with the source that is called nutrition, and as per depending upon the body design, we were discussing in multicellular organs, the a specialized tissue for every body functions are there. And then we had started nutrition. How do living things get their food? In that nutrition, we were discussing autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. And in autotrophic nutrition, we were discussing about the carbon dioxide reaction with water in the presence of chlorophyll and sunlight. Leaves were preparing food in the form of glucose, C6H12O6, we were discussing, giving the release of oxygen and water. These things we were discussing last time, I think, and I hope you all have understood whatever we have discussed. So we should now go further in autotrophic nutrition. Okay, we had discussed some other things also in autotrophic. Massive amounts of gaseous exchange we had discussed takes place during the autotrophic nutrition. We discussed heterotrophic nutrition. Each organism we were talking that they are adapted to its environment. Form of nutrition differs from the type of the and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. So now we are going to discuss how do organisms obtain their nutrition. This is also a very vital point. I hope repeatedly I am saying I think there is no problem with the language. What I am talking in English, you all are well versed, and I would try बीच बीच में मैं हिंदी बोलने का भी प्रयास करूंगा. तो हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है. ओनली प्लांट्स आर द living things, they can prepare food themselves. Otherwise, every living beings are dependent on environment, like plants or whatever the foods available in the surroundings.
हम उन चीजों पर निर्भर करते हैं। एक प्लांट ही है जो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने अंदर फूड यानी भोजन बना लेता है। और जैसा कि हम लोग इसमें पढ़े भी कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है वो सराउंडिंग में बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग उसमें देखे थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट के द्वारा ही, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो प्लांट के द्वारा ही फूड बनाया जाता है। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट उसको हेल्प करता है और ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। 6 molecule of oxygen is released with 6 molecule of H2 and huge amount of energy is also being released। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा भी था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है मैंने बताया था आपको, मेटाबॉलिज्म होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट में मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म ये साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। जितना अमाउंट ऑफ केटाबॉलिज्म का होता है उतना अमाउंट ऑफ एनाबॉलिज्म का होता है। ये सब हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाकी जो हैं, आई मीन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, फूड और उसके तरीके, आई मीन द फूड एंड द वे इट इज ऑप्टेड डिफर। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके पास वेजिटेरियन फूड होता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली वेरियस ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंटली चेंज होता रहता है। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम्स नहीं होता है। और जब ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है तो उनका जो सिंगल सेल बॉडी जो होता है वो पूरा, आई मीन टोटल होल इंटायर सरफेस ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल और यू कैन से टेकिंग पार्ट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, entire cell surface. But in case of human being, in case of other animals, they are having a proper body system, I mean proper organ system they have, and depending upon the need, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेता है अपने सेल के द्वारा सेल सरफेस पे, और दूसरे फूड पार्टिकल पे, जो फूड पार्टिकल उसको लगता है कि उसको अपने अंदर इनगल्फ करना बोलते हैं, उसको अपने अंदर ले लेने का मतलब होता है इनगल्फ करना। तो अमीबा व्हेन दे रिक्वायर टू टेक फूड, तो दे क्रिएट टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, सीलिया बोलते हैं उसको, ठीक है, उस सेल सरफेस पे बना लेता है और वो अपने उस सीलिया को उस फूड पार्टिकल के ऊपर फ्यूज कर देता है, और फ्यूज करने के बाद उस फूड पार्टिकल को अपने फूड वैक्यूल में, अमीबा सेल के अंदर एक बहुत बड़ा फूड वैक्यूल होता है, ओपन स्पेस वैक्यूल मींस ओपन स्पेस, तो उस अमीबा का वो पर्टिकुलर फूड जो है वो अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले लेता है। इफ यू हैव बुक्स, अगर आपके पास बुक्स है तो इसमें फिगर में दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियस होता है फूड पार्टिकल को उसके पास खड़ा है, न्यूक्लियस के बाद सेल का जो है वो 2 सीडोपोडिया उसमें निकल रहा है, और निकलने के बाद उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substances are broken down into simpler forms when which then diffuse into cytoplasm। साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं जो फूड सेल के अंदर पूरा लिक्विड, और जिसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 7th 8th में इसका एक्सप्लेनेशन। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out of the body। जैसा मैंने बताया था
कि हमारे बॉडी में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। हम फूड को ओरली लेते हैं माउथ से, एलिमेंट्री कैनाल उसके लिए एक लंबा चेन बनाता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड हम जब लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बट सिंगल सेल, डबल सेल या पैरामीशियम वगैरह में ये सब पूरी तरह से नहीं बना था। सेल हैज डिफरेंट शेप and food is taken in at a specific spot. Food is moved in the spot. तो इस तरह से ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आप हम सब अपने बारे में पहले जान लें। एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं माउथ टू एनस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वो उसमें से शुरुआत होता है माउथ से और एनस से वो खत्म होता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रीजन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि हम जब फूड को अपने साथ इनसाइड बॉडी लेते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस वी इट एंटर्स आवर बॉडी? So that we will discuss the process. मेरे ख्याल से आपके पास बुक है तो आप इसको खोल लें। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा प्यारा सा डाइजेस्टिव। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग ए डायग्राम बिकॉज अभी मैं यहाँ पे डायग्राम, इसलिए मेरा बेसिक रीजन है कि मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, आपके बुक में बना हुआ है। Go through that diagram. I am just discussing it. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. What is explained there? हम कई लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं जो महसूस भी करते हैं खाना खा रहे हैं तो वो खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड। जो खाना हम खाते हैं वो बहुत उन्होंने उसको प्रिपेयर किया जाता है और वो एज सच डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेकअप करते हैं, तो उसको फूड प्रोसेस्ड कहते हैं। टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड टू द सेम टेक्सचर, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। हमारे मुंह में दांत होते हैं, टंग होते हैं जो उसको बार बार स्लाइवा के साथ मिक्सअप करते रहते हैं। टंग मैस्टिकेट करता है, उसको इंट्रीगेट करता है। डिफरेंट डिफरेंट टंग हैं जो मैस्टिकेशन इंट्रीगेशन में काम आते हैं। जो हम टंग का और टीथ का डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं जो मैस्टिकेट करते हैं, इंट्रीगेट करते हैं। उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि केनाइन होता है, सुपर केनाइन होता है, तो उसको हम बताएंगे। अभी हम यहाँ पे फूड पढ़ लें कि किस तरह से फूड हम जब लेते हैं तो उसमें एसोफेगस होता है जो माउथ का ओपनिंग के ठीक नीचे, जिसको यहाँ बोलते हैं एसोफेगस होता है। एसोफेगस के थ्रू जो पास करता है फूड, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसमें गीला करने के लिए हमारे माउथ में लार निकलता है जिसको स्लाइवा बोलते हैं। ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस स्लाइवा के थ्रू उसमें फूड को हम लुब्रिकेट करते हैं, उस फॉर्म में करते हैं कि वो इसोफेगस से ट्रेवल करके उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, उस फूड मटेरियल को इसोफेगस से ट्रेवल करके वो सीधा स्टमक में चला जाए। What is that food is then named? That is named bolus. वो एक फूड गुच्छा के रूप में होता है। एंड जैसे ही फ्रूट को क्रश करके हम स्लाइवा से मिक्स करते हैं, उसमें देखो खाने का नाम लिया है तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, और आपके मुंह में भी कोई अच्छे खाने का जो आपको पसंद है, whatever you like, if that type of food is available in your surrounding where you are present, उसके आसपास if you are able to see the food materials what you like very much, तो आपका मुंह जो है वाटरी होने लगता है, मुंह से सलाइवा अपने आप सेक्रेट करने लगता है। This is actually not only water but a fluid called
that I was telling you, saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. It is also to be observed from the alimentary canal. हम बोले जैसा मैंने बताया माउथ टू एनस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और जब उसमें वो एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से गुजरता है तो इट इज ब्रोकन इन डिफरेंट डिफरेंट small molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. ठीक है ना enzymatic chemical reaction होता है enzymatic reactions होता है saliva also contains some enzyme called salivary amylase that breaks down starch. We sometimes we eat lot amount of starch. That starch is being broken down by salivary amylase, which is complex molecule to give simple sugar because our digestive system is not able to digest the complex glucose molecule what we are taking from the outside. So they break it in simple glucose molecule so that it get digested and salivary amylase helps doing that complex molecule to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around mouth while chewing by the muscular tongue. टंग हमारा आपने देखा होगा आपने टंग को टच करके देखेंगे तो किसी किसी का टंग थोड़ा पतला होता है किसी किसी का टंग जो होता है वह मस्कुलर होता है तो वो हमारे माउथ को लुब्रिकेट सलाइवा जो निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से उससे वो टंग को लुब्रिकेट करने का काम करता है और उसके बाद इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. वो ऐसा नहीं कि जो फूड ट्यूब हमारे यहाँ पानी वाटर ट्यूब होता है कि एक तरफ से वाटर डाले और शॉर्ट से वो दूसरी तरफ निकल गया ऐसा हमारा कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है वो उसमें अंदर सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है और वो रेगुलेटेड मैनर में इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है उसका एक अपना रिदम होता है इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड वो एक साथ मुंह में डालते हैं और सीधा पेट में चला जाता है ऐसा नहीं होता है दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड वो जो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं along the gut एलिमेंट्री कैनाल का एक दूसरा नाम भी गट होता है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप दैट इज कॉल्ड esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters. कहते हैं ना जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टोमक का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है ये वेरिएबल साइज इट कैन वेरीज इन साइज और अपने को छोटा बड़ा आकार में करता रहता है तो जैसे ही हम खाना खाते हैं थोड़ा वो फूल जाता है और हम फूड जो अंदर एसोफेगस से स्टोमक में जाता है तो वो एक लार्ज स्टोरेज है और हम सब जानते हैं कि जब स्टोमक में फूड जाता है तो देन देयर इज इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है द डाइजेशन ऑफ इन स्टोमक इज टेकन केयर by the gastric gland present in the wall of the stomach. क्योंकि और इसीलिए इसको गैस्ट्रिक रीजन भी कहते हैं कि वो गैस्ट्रिक रीजन है और गैस्ट्रिक जूस वहां से पेराइटल सेल होता है बीटा सेल होता है हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इसको डीप बताएंगे कि वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है आप सब लोग जानते होंगे कि HCl वहां से निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसका काम होता है आपने पिछले क्लास में छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि एसिडिक मीडियम होता है फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है और सो दैट क्यों कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम में इसलिए कन्वर्ट करता है कि एक एंजाइम निकलता है जिसको पेप्सिन बोलते हैं ठीक है वो उसके एक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड
creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. With what other functions do you think is served by the acid? The mucus protects the lining, inner lining of the stomach from the action of acid under normal conditions. We have often heard, जैसा कि हम लोग सुने हैं बहुत लोगों को, हो सकता है आप में से भी किसी को हो, एसिडिटी होती रहती है। वो HCl, जैसा कि मैंने बताया, उसको प्रोटोन फॉर्म बोलते हैं। पैरेटल सेल होता है, प्रोटोन पैरेटल सेल में जैसे हम अपने घर में टैप देखते हैं, टैप से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो उसी तरह से पैरेटल सेल होता है। पैरेटल सेल से बूंद बूंद करके हाइड्रोजन आयन स्टोमक में गिरता रहता है, और स्टोमक का इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिक होता है। क्लोरीन क्लोराइड आयन जो होता है वो स्टोमक के इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब वो H आयन, H प्लस आयन जब नीचे गिरता है तो Cl माइनस दोनों एक साथ कंजुगेट कर जाते हैं, और कंजुगेट करके HCl स्टोमक का एनवायरमेंट जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। टोटल इनसाइड द स्टोमक वॉल जो होता है दैट इज कवर्ड बाय म्यूकस, म्यूकस लेयर, वेरी सॉफ्ट। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग वेरी हॉट इनसाइड आवर माउथ, देन व्हाट यू फील? You feel that there is some burning sensation inside the mouth, and what happens after some time? That there you कहते हैं ना वो पपोला सा बन जाता है, और फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा कि वहां पर से एक स्किन का लेयर हट गया, and then you start feeling something is lying inside the mouth which is very painful, और उसके बाद वहां पर जहां से वो स्किन हटता है तो उसको वहां पे नेकेड हो जाता है। वो म्यूकस लेयर है। माउथ के अंदर भी एक म्यूकस लेयर होता है जो माउथ को उन चीजों से बचाता है जो हानिकारक है, या गर्म, बहुत गर्म होते हैं तो उससे जलने से, माउथ को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उसको बचाता है। उसी तरह से स्टोमक का टोटल इनसाइड जो दीवार जो है उसको वो उसी म्यूकस लेयर से कवर्ड होता है। और जब हम HCl का सेक्रेशन पेट में कभी खाना नहीं होता, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर कहता है कि टाइम से खाना खाइए, मतलब हर 4 घंटे में बॉडी में कुछ जाना चाहिए, स्टोमक में कुछ जाना चाहिए, क्योंकि वो 3.5 घंटे में एक बूंद HCl का वहां गिर जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर जाता है। इसी से अगर हम उस ड्यूरेशन में खाना नहीं खाते तो कहता है ना हमको बर्निंग सेंसेशन होता है, एसिडिटी होने लगता है हमको। ये वर्ड एसिडिटी आजकल बहुत नॉर्मल है, आपको अपने घर में भी सुनते हैं। तो इस एसिडिटी को हम कैसे क्या करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस इट इन ए स्मॉल अमाउंट फ्रॉम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक का रीजन जहां से खत्म होता है वहां से स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक स्फिंक्टर जिसको डायफ्राम बोलते हैं वो बाहर की तरफ खुलता है। आई मीन स्टोमक से आउटसाइड खुलता है, स्टोमक से इनसाइड, मतलब वंस फूड हैज बीन एंटर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन देन कैन नॉट बी टेकन बैक इनसाइड द स्टोमक, और उसको डायफ्राम से पूरे स्टोमक को कवर किया रहता है। स्टोमक से वो स्फिंक्टर के द्वारा जो होता है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्री में आते ही फूड का वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वालिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ओनली अ नेम, बेसिकली इट इज अ वेरी लार्ज इन साइज, and the length of a small intestine differs in various animals depending upon the food they eat. Sorry, herbivores जो होते हैं, herbivores eating grass needs a longer into a small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence, carnivorous like tigers have a shorter small intestine. Small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. हम इससे अर्लियर क्लासेस में 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इन तीनों का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इन तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही
हो जाता है। इट रिसीव्स द सेक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लीवर एंड पैनक्रियास। अगर किसी आदमी का लीवर खराब हो गया हो तो उस वक्त डाइजेशन प्रॉपर नहीं, और पैनक्रियास बहुत सारी चीज पैनक्रियाटिक जूस देता है, दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल, दैट यू नीड नॉट टू बी। ठीक है, आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है और देन उसमें वहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का डाइजेशन होता है। कैसे होता है और आगे क्या क्या होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन, only thing is I'm requesting, if you do like study with me, whatever I'm explaining is familiar to you or you understand everything, then please subscribe my channel, share with your friends, tell your friends how I am giving you this knowledge, and if anything suggest you want to suggest me anything, then give your comment also, that will, कहते हैं ना वो हमको भी बूस्टअप की जरूरत होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, और उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करके आप अपना फीडबैक, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस सेक्शन ऑफ study, then please feel free to write down on the wall. I am on Telegram also. I am on WhatsApp also. Last day I had given my WhatsApp number 7004912264. Once again you can note down and give me comments. How is this video? Okay, thank you. Bye bye. Take care.